Parth. Parth is there. Yes, sir. So today only 11 students have joined here. Yes, sir. Can you once again ask in the group to join as soon as possible? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। एक मैसेज डाल दो ग्रुप में कि जल्दी से ज्वाइन करें, क्लास स्टार्ट हो गई है। सर भेज दिया मैंने मैसेज तो। अभी नहीं, एक बार वापस डाल दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी से ज्वाइन Okay, करें, जल्दी से ज्वाइन करें, ऐसा मैसेज डाल। ठीक है। So students, we have completed first primary motion, that is shedding motion. And shedding motion is having three types of mechanism: tapered shedding, Dobby shedding, and Jacquard shedding. From these three mechanisms, we have taken working of tapered shedding mechanism with the help of diagram. So I hope the previous topic is clear to everyone. Now we are starting another motion of loom that is known as picking motion. And as you know, already we have taken definition part, so I'm just going to read out. Picking is the next process after shedding in the sequence of primary motions. Primary motions जो है उनकी sequence में तो हम देखें तो shedding के बाद picking आता है. It consists of passing of weft thread through the shed of warp threads. What is picking? It is passing of weft thread through the shed of warp thread. जो warp threads जो shed बनाते हैं by dividing them into two layers, उस shed के through, उस opening के through weft thread, single weft thread को जो हम pass करते हैं, एक pick को जो हम pass करते हैं, that is known as picking. There are some objects of picking, and the main objects of any conventional picking where we are using fly shuttle as a weft carrier are following. First is to deliver the shuttle along the correct flight path. जो shuttle का flight path है, जो correct flight path है, उसके साथ shuttle को deliver करना, यानी कि अपने जो उसका path है उससे divert नहीं हो, correct flight path पर shuttle को deliver करना, that is one of the object of picking. And another is to project the shuttle at a predetermined velocity. शटल को प्रीडिटरमाइंड वेलोसिटी जो हमने पहले से जो डिसाइडेड वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से शटल को प्रोजेक्ट करना एक साइड से दूसरी साइड में. अगर वेलोसिटी प्रॉपर नहीं होगी, कम होगी, तो शटल एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में नहीं पहुंच पाएगी और कहीं कहीं शेड के बीच में ट्रैप हो जाएगी. और अगर शटल ट्रैप होगी तो शटल और रीड के बीच में स्मैशिंग होगी, उससे शटल डैमेज होगा, रीड डैमेज होगा, वार्प थ्रेड्स डैमेज होगा. सो इसकी वेलोसिटी प्रॉपर होना बहुत जरूरी है. जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है उस वेलोसिटी पे हमें प्रोजेक्ट करना है. और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो जो पार्ट पिक जिस अदर साइड में जो पीकर और जो भी उसको उस मोशन को बियर कर रहा है उसको ज्यादा डैमेज करेगा. तो वेलोसिटी जो प्रीडिटरमाइंड वेलोसिटी है, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और उससे कम भी नहीं होना चाहिए. Both the objects which we have taken here are done by picking mechanism. Whatever type of picking mechanism we are using, that is used to get or to obtain these two objects. Clear? So first object is to deliver the shuttle along the correct flight path, and second is to project the shuttle at a predetermined velocity. उसका path भी correct होना चाहिए और जो required velocity है उसी पर हमें उसको project करना है. The objects can be achieved by doing following arrangements. Objects तो हमने पढ़ लिए हैं, but इन objects को हम कैसे achieve कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या arrangement करना पड़ेगा, that is given in brief here. The shuttle
box back. Shuttle box यानी कि the home for the shuttle where the shuttle dwells or shuttle rest when beating up is done. जब beating up के लिए रीड फॉरवर्ड मूव करती है उस समय शटल बॉक्स में रेस्ट करना चाहिए. तो जो जहां शटल रेस्ट करती है, जो शटल का होम है, जहां वो ड्वेल करती है, उसको हम शटल बॉक्स बोलते हैं. तो शटल बॉक्स बैक एंड द रीड आर इन परफेक्ट अलाइनमेंट. जो शटल बॉक्स का जो बैक साइड है और जो रीड आपने फिक्स की है स्ले रेस के ऊपर, वो बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए. इट शुड बी इन परफेक्ट अलाइनमेंट. वहां पर थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस हुआ तो शटल को वो डाइवर्ट कर देगी करेक्ट फ्लाइट पाथ से, एंड दैट विल रिजल्ट इन अ शटल फ्लाई. सेकंड अरेंजमेंट इज द शटल बॉक्स बेस एंड द रेस्ट बोर्ड आर इन परफेक्ट अलाइनमेंट. शटल बॉक्स बेस और जो रेस्ट बोर्ड है, स्ले के ऊपर का जो पार्ट है, वो दोनों एक परफेक्ट अलाइनमेंट में होने चाहिए. क्योंकि शटल जब रेस्ट बोर्ड से मूव करके एंटर करती शटल बॉक्स में, अगर शटल बॉक्स वहां से थोड़ा सा भी अगर अलाइनमेंट में नहीं है, तो ऊपर है या नीचे है, तो शटल जो है वो करेक्ट पाथ पर मूव नहीं करेगी, वो डाइवर्ट होगी, एंड अगेन देयर विल बी शटल फ्लाई will take place. And third one is the shuttle delivered satisfactorily by the peaker. थर्ड हमें क्या अरेंजमेंट करना है? शटल को हमें डिलीवर करना है satisfactorily by the peaker, यानी कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी. तो फर्स्ट टू जो है अगर अचीव नहीं होते हैं तो शटल फ्लाई विल टेक प्लेस, और अगर थर्ड ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता है, थर्ड अरेंजमेंट पूरा नहीं होता है, तो क्या होगा? शटल ट्रैप विल बी देयर. तो ये तीनों ऑब्जेक्ट में से अगर कोई भी अचीव नहीं होगा, देयर मे बी चांसेस ऑफ शटल फ्लाई ऑफ और ट्रैप. या तो शटल फ्लाई ऑफ हो जाएगा या ट्रैप होगा. फर्स्ट टू रीजन के केस में शटल फ्लाई होने के चांस होते हैं, और लास्ट अगर हमने फुलफिल नहीं किया, अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं किया, तो शटल ट्रैप होने के चांस होते हैं. सो टू अवॉइड शटल फ्लाई ऑफ और ट्रैपिंग, वी आर अरेंजिंग दिस. ड्यू टू पावर कट देयर मे बी सम नेटवर्क इशू, तो एक बार क्लास बंद हो सकती है, अगेन हमें रीजॉइन करना पड़ेगा. सो अगर क्लास बंद होती है तो वापस रीजॉइन करें आप लोग. Then types of picking motions. There are two types of picking motions.